Once again, a very good morning. Uh, Last we stopped at hardness, right? So hardness we have gone through that. एक बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे नए भी हो सकते हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, 1-2 मिनट में recap. So basically we have gone through water treatment. Just a minute. I'm just sharing my screen. I hope my screen is visible to all. So, last time we have gone through water treatment, some of the content, introduction part we have gone through. Then we have gone through the sources of water, different types of sources. Generally, there are two major sources: groundwater and surface water, and sub sources were also discussed. Impurities, very very important slide, you know, for your chapter, because ultimately we are going for the treatment of water. Generally, why we have to treat the water? Because impurities are there. We have to remove those impurities, and because of that, impurities are important. We should know which type of impurities are there, and then according to that, we have to uh, select the method. Okay. Now, after that, uh, just yeah, hardness was discussed. Why soap is consumed more with the hard water? Because of the reaction of stearate with calcium and magnesium salts, and insoluble salts of calcium stearates are formed. That's why they are consumed more, and leather formation is less. This was the difference. Last we discussed does not produce leather, dissolved salts of calcium and magnesium. This is your hard water, and this is your soft water. That is, leather formation is easy and it doesn't contain that magnesium and calcium salts. Now, let's understand. We have understood the temporary and permanent hardness, right? So, temporary and permanent hardness basically, uh, these are not new words for you because you have learned this in somewhere 11th or 10th standard somewhere. So, these are not the new words. Temporary hardness. Basically, temporary hardness is actually uh, due to calcium and magnesium salts of carbonates and bicarbonates. If my water contains calcium carbonate or magnesium carbonate or bicarbonate, generally calcium and magnesium are the major sources of hardness. अब calcium क्यों लेते हैं, magnesium क्यों लेते हैं, we will discuss it later on later stage, right? So calcium and magnesium के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अगर होते हैं तो उस हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं. Generally, presence of dissolved carbonates and bicarbonates of magnesium and calcium, right? So that is known as a temporary hardness. If bicarbonate is there, right? If I will heat this calcium bicarbonate, it will be converted into calcium carbonate, water, and carbon dioxide. This is a very, very basic reaction you have learned in 7th, 8th standard, right? Similarly, magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate will give you magnesium hydroxide, right? And carbon dioxide. So carbonate hardness or alkaline hardness are the other words for the temporary hardness. Remember, carbonate hardness or alkaline hardness. These are the two other words. आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कार्बोनेट हार्डनेस के दूसरे नाम बताइए, या तो टेम्पररी हार्डनेस का दूसरा नाम बताइए. तो आपको आना चाहिए कि कार्बोनेट हार्डनेस कुछ कुछ
बुक्स में कार्बोनेशियस हार्डनेस भी लिखा होता है, दैट इज ओके, वन एंड द सेम. So carbonate hardness or alkaline hardness, that is called temporary hardness, right? Permanent hardness क्या होता है? तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, all other salts of calcium and magnesium, they are considered as, you know, permanent hardness. For example, if I have water and in that water I have magnesium bicarbonate and calcium sulfate, so I will call this water as, is the water is having permanent as well as temporary hardness. दोनों हार्डनेस है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम का सल्फेट है. तो सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सारे सॉल्ट्स, मतलब ये एक बोल सकते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं हमेशा. दैट दे प्रोड्यूसेस परमानेंट हार्डनेस. तो ये चीज को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, वो आगे जाके हम और समझेंगे. But again, this hardness is known as non-carbonaceous or non-carbonate hardness or non-alkaline hardness. ठीक है, इसको non-alkaline hardness बोलते हैं. इसलिए non-alkaline hardness बोलते हैं क्योंकि इसमें सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सारे सॉल्ट्स आते हैं. इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें कोई भी बेसिक सॉल्ट नहीं आ रहा है, सारे एसिडिक सॉल्ट्स आ रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट द टर्म इज गिवन एज नॉन अल्कलाइन हार्डनेस. समझ में आ रहा है सब लोगों को? परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस एकदम क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये बार बार आएगा ये वर्ड, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है हमको, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है. ये बार बार आएगा आपका. temporary hardness and permanent hardness, calculate the temporary hardness and permanent hardness. total hardness, total hardness क्या है? total hardness is nothing but the summation of temporary and permanent hardness. सम कर लो. जैसे मेरा टेम्पररी हार्डनेस 20 ppm है और परमानेंट हार्डनेस 40 ppm है, तो मेरा टोटल हार्डनेस क्या हो गया? 60 ppm, राइट? तो ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको हर स्टेप में ये चीज को बार बार आएगा ये कि ये टेम्पररी परमानेंट, ये टेम्पररी है, परमानेंट है, इसको टेम्पररी रिमूव कर सकता है, परमानेंट नहीं कर सकता है, परमानेंट कर सकता है, टेम्पररी नहीं कर सकता है. सो दिस टर्मिनोलॉजी विल बी ऑलवेज देयर, सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ये बहुत कि आपका क्या कंसेप्ट टेम्पररी का है और क्या कंसेप्ट, क्योंकि when you are not clear about these two terms, you will be always confused, you will be always confused. समझ में आ रहा है? आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको. ठीक है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग. जस्ट अ मिनट. ओके, इसके अलावा एक और हार्डनेस भी होती है, एक और हार्डनेस भी होती है, एंड दैट हार्डनेस इज कॉल्ड a pseudo hardness. What is that pseudo hardness? Pseudo hardness क्या है? तो pseudo hardness is the pseudo का मतलब क्या होता है पता है? फॉल्स फॉल्स False, correct. ये वर्ड आपने कहीं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है? सूडोपोडिया 10th हाँ? में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था सर. सूडो फोर्स सर. ओके, लेकिन मैं तो 12th की बात कर रहा हूँ. 12th में कहीं केमिस्ट्री में आया था. क्या क्या? सूडो सर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Pseudo first order. एग्जैक्टली. यस यस, करेक्ट. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा था. उसका मीनिंग पता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? That it is similar. वन बाय वन बेटा, वन बाय वन.
इट वाज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता था तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ले लिया जाता था। करेक्ट करेक्ट, मतलब ये था कि जो था वो दिखता नहीं था और जो दिखता था वो था नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलते हैं हम, आप लोगों ने गर्मियों में क्या बोलते हैं, रोड पे हम जाते हैं ना तो दूर दूर ऐसे लगता है पानी है, लेकिन आगे जाते हैं तो पानी नहीं होता है, मिराज क्या बोलते हैं मिराज उसको? मिराज मिराज, करेक्ट करेक्ट। सूडो, इट इज अ सूडो इफेक्ट, फॉल्स इफेक्ट। वो रिफ्लेक्शन से होता है, सनलाइट के रेज से होता है, ठीक है। मतलब है, लेकिन पास जाते तो नहीं है, और दूर जाते हैं तो नहीं है फिर भी दिखता है। इट इज द सेम थिंग, right? So the third type of hardness is called a pseudo hardness, which you have not learned. Temporary permanent शायद आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, pseudo hardness आपने नहीं पढ़ी है। Pseudo hardness is the hardness due to the salts like sodium, potassium, ammonium के salts होते हैं, वो पानी में अगर होते हैं तो वो हार्डनेस नहीं बोलते हैं उसको। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, एकदम इजी समझ में आ जाएगा आपको। एक ग्लास ऑफ वाटर, आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई एम एडिंग हाफ ऑफ द टी स्पून ऑफ प्योर सॉल्ट, NaCl, राइट? उसको डिसॉल्व कर दिया मैंने पानी में, और एक ग्लास का पानी प्योर डिस्टिल वाटर मैंने रखा हुआ है एकदम नीट एंड क्लीन। अब दोनों से मैं हाथ वॉश करता हूं, साबुन लेके, डेफिनेटली दोनों में मुझे लेदर फॉर्मेशन सेम मिलेगा? नो विल सर, इट बी? नो सर, किसमें ज्यादा मिलेगा, किसमें कम मिलेगा? प्योर वाटर में ज्यादा मिलेगा। प्योर वाटर में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तो सॉफ्ट है एकदम, तो प्योर डिस्टिल वाटर है, एकदम मस्त सॉफ्ट वाटर है, प्योरली नथिंग इज देयर, तो उसमें ज्यादा फोम मिलेगा। लेकिन NaCl वाला पानी में ज्यादा फोम नहीं मिलेगा, भाई हार्डनेस तो है नहीं, हार्डनेस तो है ही नहीं उसमें, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट ही नहीं है, सोडियम क्लोराइड है सिर्फ, तो भी वो फॉर्म फोम नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हार्डनेस जो है वो है भी और नहीं भी, समझो इसको अच्छे से। एस सोडियम क्लोराइड वाला पानी हम पी सकते हैं, तो बोला हाँ पी सकते हैं, क्यों? बोला सोडियम क्लोराइड तो नमक है, शरबत में भी तो सोडियम क्लोराइड डालते हैं ना, नींबू, चीनी, नमक, वो सारी चीजें डालते हैं, वो पानी पीते हैं हम लोग। तो सोडियम क्लोराइड वाला पानी हम पी सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड वाला, पोटेशियम क्लोराइड वाला पानी पी सकते हैं, दे आर द सॉल्ट्स, नथिंग एल्स, राइट? लेकिन मतलब कि ये है कि ये पानी हार्मफुल नहीं है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो भी पी सकते हैं। सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स और एमोनियम के सॉल्ट्स वाले पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट स्टिल दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। इसका मतलब ये लेदर फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, कम कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि सूडो हार्डनेस इज द हार्डनेस विच इज नॉट हार्मफुल, but due to the presence of sodium and potassium ions, right, salts, sodium and potassium salts, it shows the property of hardness. It means उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। देखो हार्ड वाटर हार्मफुल होता है कभी कभी, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो वो हार्मफुल हो सकता है आपका, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपके किडनी में स्टोन कर सकता है, किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं पथरी, राइट? वो प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल, एंड दैट इज वाई इसको हम सूडो हार्डनेस बोलते हैं। रिमेंबर, सूडो हार्डनेस इज नॉट एडेड इन टोटल हार्डनेस। टोटल में सिर्फ और सिर्फ परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस आएगी, ठीक है? टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस आएगी सूडो में, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी और परमानेंट। सूडो हार्डनेस अगर आपको दिया है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं, इफ माय वाटर कंटेन्स 100 ppm of temporary hardness, 20 ppm of permanent hardness and 40 ppm of pseudo hardness, तो मेरी टोटल हार्डनेस कितनी हो जाएगी? टोटल हार्डनेस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20 प्लस 40,
160? नो 120 120 120 बच्चा 120 मैंने अभी बोला ना आपको बेटा अभी बताया कि सूडो हार्डनेस को ऐड नहीं करना है कभी भी। तो सर मुझे तो सूडो हार्डनेस दिया हुआ है 40 ppm का। निग्लेक्ट इट, निग्लेक्ट इट, लेना देना ही नहीं है हमको बिकॉज दिस हार्डनेस इज नॉट हार्मफुल। रिमेंबर ये हार्डनेस आपकी हार्मफुल नहीं है, वो सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स की वजह से है, ठीक है बराबर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। जब आपका जब न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब बताऊंगा मैं कैसे करना है क्या करना है, लेकिन जब आपको डेटा दिया हुआ है टेम्पररी परमानेंट सबका और आपको टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने को पूछा है तो आपको ये बराबर से याद होना चाहिए कि अगर सूडो का डेटा दिया है तो इट्स ओके, सूडो का डेटा निग्लेक्ट कर दो, खत्म, उसको आपको देखना ही नहीं है, मतलब उसको कंसीडर नहीं करना है कैलकुलेशन में, राइट। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चे क्या करते हैं तीनों को मिला देते हैं टोटल में, तो होता ही है कि उन्होंने टेम्पररी सही कैलकुलेट किया है, परमानेंट सही कैलकुलेट किया है, लेकिन टोटल के मार्क्स चले जाते हैं उनके, क्यों? क्योंकि टोटल में उन्होंने गलत कर दिया, सूडो को भी कंसिडर कर दिया। अच्छा ये हार्डनेस जो है वो मैं बता रहा हूं, वो हार्डनेस यू हैव टू बी यू नो वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, बिकॉज डायरेक्टली आपको पीपीएम में दिया होगा उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। ओके चिंता मत करो, अभी जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। सो आई होप कि परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस आपको एकदम क्लियर हो गया है, परफेक्टली क्लियर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके सो नाउ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि जस्ट वेट अ मिनट। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, और वो है आपका एक बाइफर्केशन कि किस चीज को कब क्या बोलेंगे। ये आप देख सकते हो यहां पर कि हम लोग अब जाने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, डिग्री ऑफ हार्डनेस करने वाले हैं हम लोग। डिग्री ऑफ हार्डनेस जब करेंगे, ठीक है, तो उसके पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये डिग्री ऑफ हार्डनेस होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका हार्डनेस है, दैट हार्डनेस इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में उसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप कोई आरओ का मशीन ले आए, नया आरओ का कोई नया मॉड्यूल ले आए, तो उसके ऊपर हर एक आरओ का एक कैपेसिटी होता है उसके फिल्टर्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें लिखा होगा कि दिस आरओ कैन रिमूव अप टू 500 ppm ऑफ हार्डनेस इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्यों होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों क्यों मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, क्यों कैल्शियम सल्फेट नहीं, क्यों कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों पकड़ा? तो इसका 3 रीजन है, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि व्हाई ओनली कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। तो उसका सबसे पहला रीजन है बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है इसका बहुत ही, राइट। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस में सबसे कम KSP, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, KSP इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, यू मस्ट हैव लर्न दिस इन इक्विलिब्रियम चैप्टर।
सो सबसे कम KSP होता है, इसका मतलब कि सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है पानी में। कैल्शियम कार्बोनेट इज द लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या होगा, आपका कैल्शियम का जो भी सॉल्ट होगा वो क्या होगा, फटाक से कार्बोनेट में कन्वर्ट करो तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, उसको फिल्टर करो निकाल दो तो आपका पानी प्योर हो जाएगा। अच्छी बात, राइट। तो ये दूसरा रीजन है कि मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन वाटर ट्रीटमेंट, सबसे इजीएस्ट वे एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन हार्डनेस। मतलब मेरा पानी में जो हार्डनेस आ रहा है वो पानी का हार्डनेस जो है वो हार्डनेस आपका मैक्सिमम मैक्सिमम कैल्शियम के सॉल्ट है। मतलब कि कैल्शियम के सॉल्ट से आ रहा है, इसका मतलब कि अगर मेरा 100 ppm का हार्डनेस आ रहा है तो उसमें 90 प्लस ppm आपका कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे सबसे ज्यादा। मैग्नीशियम या दूसरे सॉल्ट भी हो सकते हैं लेकिन जनरली मैक्सिमम कैल्शियम की पॉसिबिलिटी होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस calcium carbonate equivalent has been selected for the representation of hardness। हार्डनेस का रिप्रेजेंट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इसीलिए लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का डिग्री जो है वो कैसे उसको डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला पे हम बाद में आएंगे। So that is called a degree of hardness. Remember, it is called a degree of hardness. Degree of hardness में क्या है? These are the units. These are the units of hardness in which we can represent the hardness. Right? इसका मतलब ये हुआ कि calcium carbonate equivalent hardness can be represented either by ppm or by milligram per liter or by degree French FR French and degree Clark। ठीक है, तो इस चार क्लार्क CLARC क्लार्क डिग्री क्लार्क CLARKES क्लार्क sorry। So these are the 4 units in which you can represent your degree of hardness। अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैसे बताया जाता है। ठीक है, ओके। सो जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मेरे को ये एक बार फिर से चालू करना पड़ेगा मुझे। ये जस्ट स्टॉपिंग दिस शेयरिंग, अगेन आई एम शेयरिंग, डोंट वरी। Okay, again I am sharing the same screen. I hope you can see the screen. दिख रहा है सबको स्क्रीन? Okay, fine. So these are the sources. Yeah, these are the degree, Clark, French, milligram per liter and ppm. Now these are the 4 units। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में
Write down the units used for the representation of your, you know, this uh, hardness. तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज पीपीएम? कोई बता सकता है मुझे पीपीएम क्या है? Parts per million. यार मैंने उसका फुल फॉर्म नहीं पूछा था. million. आई नो दिस. आई नो दिस. आई वांट द एग्जैक्ट कंसेप्ट. कंसेप्ट चाहिए मुझे. 10 to the power minus 12. वाह, वेरी गुड. मतलब रट्टा बढ़िया से मारा है 12th स्टैंडर्ड का. -12. सर इट मीन सर मतलब 1 मिलियन पार्ट्स अगर अपन सोल्यूशन के लेते हैं तो उसमें सोल्यूट कितने पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है बेसिकली. अच्छा ठीक है, चलो. फिर भी यार अभी भी मुझे एक लेमैन को समझाना है. लेमैन को समझाओ यार, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ आज. चलो मुझे समझाओ, कैसे समझाओगे आप? बेटा आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है, मुझे कट जाता है, आवाज कट जाता है आपका. आपकी आवाज कट जाती है बच्चा. नो नॉट. नहीं, कट जा रही है आवाज. हेलो. हेलो हाँ सर. दीपान. यस दीपांशी, सर बताइए. अंजलि. अंजलि ओके. सर जैसे सी में बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल होते हैं पर सी वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में हाँ सॉल्ट बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए 10 मिलियन पार्ट जब सी वाटर के हो जाते हैं उसमें अगर एक पार्ट उसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं. चलो, मैं आपका ये कंसेप्ट जो है ना एकदम इजी बना देता हूँ. मुझे लग रहा है कि सब लोगों को अभी भी. अच्छा ये बताओ मुझे, मेरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. ओके ठीक है, तो मैं लिखूं तो पता चले मुझे. या सी, मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपीएम एंड मिलीग्राम पर लीटर? टेल मी. पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर में डिफरेंस क्या है? फिर क्लर्क और फ्रेंच को बाद में पकड़ेंगे, पहले पीपीएम तो क्लियर हो. सब लोग जेडबलई एग्जाम देके आ गए हो, 12th में अच्छे परसेंटेज लाए हो, बट ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारा. Sir, ppm denotes the number or the parts of CaCO3 per million parts of water, whereas milligram per liter denotes the weight or the mass of the solute per liter of यार ये तो मुझे भी पता है. ये आपने क्या किया, पीपीएम का एक्सपांड किया फॉर्म, उसको फिर डेफिनेशन में डाल दिया. चलो मैं आपको एकदम इजी मेथड बताता हूँ. आप लोगों को, बहुत लोगों को मतलब ये कंसेप्ट समझ में भी नहीं आता था, आता है अभी भी. ऐसे होंगे कुछ बच्चे को आता भी होगा लेकिन वो बोल नहीं रहे, हो सकता है मे बी. मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. चलो मैंने क्या बोला आपको, व्हाट आई टोल्ड यू दैट आई एम अ लेमैन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. ये सब पीपीएम बीपीएम, मुझे तो इतना अंग्रेजी भी नहीं आता है यार, सोचो. और अब मुझे आपको समझाना है. याद रखो, व्हेन यू कैन से दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट मे बी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, आप तभी ये बोल सकते हैं जब आप एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको आप समझा पाते हो. अदरवाइज वो सब्जेक्ट आपका कोई मीनिंग नहीं है. पढ़ाई करने का मतलब वो सब्जेक्ट आपका रट्टा मारा हुआ है. एक गाना भी बना था इसका, कोई पिक्चर का मुझे याद नहीं है, मूवी का, रट्टा मार ऐसा कुछ मूवी था, पता नहीं. राइट. हाँ देखो, अच्छा. बच्चों को तुरंत याद आता है. कौन से मूवी का कौन सा था वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखो कितना, मतलब कितना, देखो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ गया तो सारे बच्चे एकदम एक्टिव हो गए लिखने के लिए. गुड. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. या करेक्ट. ओके. चलो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता देता हूँ ये चीज. ठीक है. एक्चुअली ये चीज मेरे परव्यू में नहीं आती है. ये चीज आपके 12th स्टैंडर्ड के टीचर को पढ़ानी चाहिए थी. बट एज वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर, मेरी जिम्मेदारी बनती है, इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट, एंड आई शुड एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे.
मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, आपको बोलता हूं कि जो ppm है वो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज मिलीग्राम पर लीटर। आपको ताज्जुब होता है, कुछ बच्चों को शायद पता भी हो, बट कुछ बच्चों को पता है तो वो बच्चे को आता नहीं है कि वो कैसे होता है। कुछ बच्चों को पता भी है। भाई ये किसका माइक चालू है बेटा, बंद करो, मेरे को बहुत ज्यादा ये हो रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। ppm and milligram per liter are the same units. Remember, I will say that if I will say 100 ppm, that is nothing but it is 100 milligram per liter. क्वेश्चन आता है कैसे? ओके चलिए देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं मिलीग्राम कर देता हूं, राइट, और यहां पर मैं ml कर लेता हूं, मिलीग्राम और ml। चलिए मैं ये बोलता हूं कि 1000 मिलीग्राम वो समझ लो 1 लीटर में है। 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 ml हो गया। अब मैं इसको, सॉरी एक मिनट, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, सॉरी। 1 मिलीग्राम मैंने क्या किया, 1 मिलीग्राम लिया और उसको 1000 ml में डाल दिया, मतलब कि 1 लीटर में मैंने डिसॉल्व कर दिया, राइट। कुछ भी चीज, एनीथिंग कैन बी देयर। अब मैं, ये मेरा हो गया ये वाला, कौन सा, दिस इज मिलीग्राम पर लीटर, हो गया कि नहीं? ओके गुड फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू स्केल अप दिस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रेशियो। चलिए अब मैं 10 मिलीग्राम कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसंट्रेशन सेम रखना है। जैसे मैंने एक जीरो यहां लगाया तो एक जीरो मुझे यहां पर भी लगाना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड द जीरो बोथ द साइड्स, मैथमेटिक रूल। स्केलिंग अप कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई कैन से दैट 1 मिलीग्राम इन 1000 ml इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम इन 10,000 ml। अल्टीमेटली तो चीज सेम ही है, राइट। ओके, let's go for one more zero. So I will add one more zero here also. So now it is what? It is 100 milligram per 1 lakh ml, or it is the same as 10 milligram in 10,000 ml, or it is the same as 1 milligram in 1000 ml. Fine. Very good. Let's go for one more addition of zero. 1000 milligram is in a 10 lakh ml. मैंने कुछ नहीं किया, एक एक जीरो को बढ़ाता गया, मतलब 10 टाइम्स आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑन द बोथ द साइड सो दैट माय कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम ही है। अच्छा, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये और ये भी तो सेम ही है। ठीक है, मैं ये भी तो बोल सकता हूं ये भी तो सेम है, सब कुछ सेम ही है। मैं 1000 मिलीग्राम 10 लाख में बोलूं, या 1 मिलीग्राम 1 लीटर में बोलूं, या तो 1000 ml में बोलूं, बोथ आर सेम। बट आई हैव एन ऑब्जेक्शन हियर, because I have taken these two units in different systems. आपको पता है MKS एंड CGS सिस्टम, तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट क्या है? वॉल्यूम का यूनिट क्या है CGS में? What is the volume unit in CGS system? It's cc or ml. Correct. And what is the unit, CGS unit of gram, or sorry, that weight? It is a gram and kilogram, MKS CGS, right? But मेरा तो मिलीग्राम में है। No, it is not valid, right? दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा मुझे। So let's say I am writing this as 1 gram because it is 1,000 milligram. So it is the same 1 and the same 1,000 milligram is 1 gram. And now this is in gram of CGS unit, and now here
I am writing the same. 10 lakh ml. अब मेरा ये एक पार्ट हो गया कि नहीं, सीजीएस यूनिट का एक पार्ट, और ये मेरा 1 मिलियन हो गया कि नहीं, बताइए, मेरा ये 1 मिलियन हो गया कि नहीं? ओके, तो my part is 1000 milligram, that is 1 gram in 10 lakh ml. So this is 1 part per million, right? 1 part per million हो गया, बताइए। पार्ट पर मिलियन में जो 10⁶ लगता है ना, वो इस तरह से लगता है कि एक पार्ट, किसी ने बताया शुरू में, 1 पार्ट पर 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर, करेक्ट, बात सही है। लेकिन यू शुड नो द कन्वर्जन, इस तरह से आपको कन्वर्जन आना चाहिए, पता होना चाहिए ये चीज का, तो सही है आपका, परफेक्ट है एकदम। देखो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कोई। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लेमैन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लेमैन, के लेमैन के पास अगर कुछ चीज है, अरे जिसको ज्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, मिलियन और मिलीग्राम और ग्राम और एमकेएस सीजे, वो हो जाएगा जाके, उसको तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको मुझे उसकी लैंग्वेज पे, उसके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंजीनियर। देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंजीनियर की, कि अगर आप कोई चीज सही से करना चाहते हो, कोई गांव में जाके, तो गांव वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हम आपका अच्छा चाहते हैं, ये चीज है। आप टेक्निकल भाषा में बात करोगे, कोई आपको जवाब ही नहीं देगा, टेक्निकल भाषा में आपको कोई जवाब ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल भाषा उनको समझ में नहीं आती है, समझ में आ रहा है, टेक्निकल भाषा उनको समझ में नहीं आती है, और सादी भाषा आपको नहीं आती है, आपका काम कभी होने वाला नहीं है, आपका काम कभी भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उनको समझा नहीं पा रहे हो। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे समझा सकते हैं। जैसे ये पीपीएम का कंसेप्ट है, सेम है, लेकिन वही चीज एक फार्मर को मुझे समझानी है, तो मैं उसको उसकी लैंग्वेज में, उसके लेवल पे जाके समझाऊंगा। कैसे? वो बोलेगा सर ये पीपीएम क्या है साहब, ये पीपीएम तो मुझे समझ में नहीं आता। तो बोलो उसको, पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, ये 1 भाग 10 लाख भाग में है, ऐसा कुछ बता सकते हो। बोला नहीं समझ में आया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें। तो उसको बोलो कि भाई ठीक है, आपको चावल का दाना समझ में आता है? बोला हाँ, चावल तो मैं तो फार्मर हूँ, मुझे तो समझ में आएगा। बोला हाँ ठीक है। आपको गिनती तो आती है? बोला हाँ, गिनती तो मैं कर लेता हूँ, पैसे वैसे तो गिनने पड़ते हैं, ठीक है। तो बोला 10 लाख चावल के दाने ले लो, उसमें 1 दाना दाल का डाल दो। बहुत ही इजीएस्ट एग्जांपल फॉर अ फार्मर, तो वो उसको समझ में आएगा, हाँ ओके ओके, 10 लाख दाने चावल के लूं, उसमें 1 दाना मैं दाल का डाल दूं, तो दाल का कंसंट्रेशन राइस में कितना हो गया? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट दाल इन दैट राइस? राइस सॉल्वेंट है यहां पर, और दाल आपका सोल्यूट है, तो दैट इज कॉल्ड 1 ppm। 1 पार्ट दाल का है, और मिलियन का मतलब बताओ, 10 लाख, 10 लाख का मतलब है मिलियन, तो 1 दाल का दाना 10 लाख चावल के दाने में है, ये तो हम पीपीएम बोलते हैं। तो वो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ ही जाएगा, हाँ अच्छा अच्छा इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे योर नॉलेज। सी, नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज आप कितना बांट सकते हो, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कितना ट्रांसफर कर सकते हो, कितना आप कन्वे कर सकते हो दूसरों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो मेरा बहुत है, लेकिन मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, क्या करना है फिर? डब्बे में बंद करके रख दो उसको। नॉलेज शुड बी स्प्रेड इट आउट, सबको देना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आई होप कि
मिलीग्राम पर लीटर, देखो सेम ही है, मिलीग्राम पर लीटर आपका और पार्ट पर मिलियन आपका, वो दोनों ही सेम है। तो अगर आपको पार्ट पर मिलियन दिया है या मिलीग्राम पर लीटर दिया है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप के सबको ये क्लियर हो गया परफेक्ट। मिलीग्राम पर लीटर और पार्ट पर मिलियन एकदम समझ में आ गया परफेक्टली। ठीक है, फिर आप इसमें करो, कोई बात नहीं, 10⁶ पार्ट हो, याद रखो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट आना चाहिए। राइट, फाइन। चलिए अब हम जाते हैं आगे। अब ये जो हो गया हमारा कि पीपीएम क्या है, एक पार्ट किस में है, 10⁶ में, ये भी कितना है, 10⁶ में है। ठीक है, लेकिन फ्रेंच और क्लर्क क्या है, बस अगर ये समझ में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या बोला, इफ solute is present one part in 10⁶ part of solvent, then it is called ppm or milligram per liter. French is the same, एक डैश डिजिट कम करना है, फ्रेंच इज द सेम, एक डिजिट कम कर देना है। फ्रेंच एंड क्लर्क दोनों जो है नाम है बंदों के, मतलब साइंटिस्ट के नाम है। 10⁵ में अगर है मेरा एक पार्ट, वन पार्ट प्रेजेंट इन 10⁵ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंच, डिग्री फ्रेंच बोलते हैं उसको, डिग्री फ्रेंच। राइट, तो डिग्री फ्रेंच इज कि अगर मेरा कैल्शियम क्लोराइड का 1 मिलीग्राम जो है, ठीक है, या 1 ग्राम, सॉरी पार्ट अगर बोलते हैं तो 1 ग्राम जो है वो 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर में है, तो मैं कैल्शियम क्लोराइड का बोलूंगा कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 डिग्री फ्रेंच है। और ये जो है अगर ये समझ में आया तो ये भी सेम है, इसमें होता है 70,000। देखो बुक में आपको बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है, वो रट्टा नहीं मारना है, याद रखो इसको, रट्टा मारोगे तो पागल हो जाओगे। चलो मैं आपको एकदम इजीएस्ट मेथड बताता हूं, कैसे इजीएस्ट मेथड, आपको मैं एकदम इजीएस्ट मेथड इसलिए बताता हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब मेरे को अब हम लोग एक यहां पर कन्वर्जन लिखते हैं, चलिए, कि मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम मिलीग्राम पर लीटर एंड पीपीएम, उसके लिए हमको पता चल गया कि 10⁶ पार्ट होते हैं। डिग्री फ्रेंच उसके लिए होता है 10⁵ पार्ट, और डिग्री क्लर्क इसके लिए होता है हमारा 70,000 पार्ट। ओके, फाइन। नाउ लेट्स गो फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आप अगर टेबल दिया है उसमें जाओगे तो आप पागल हो जाओगे बुक में। देखो बुक वालों का जवाबदारी बनता है कि वो टेबल फॉर्म में दे दे, बच्चों को याद नहीं रहता है तो रट्टा मारे। मैं हमेशा बोलता हूँ रट्टा मारने से कभी चीजें याद नहीं रहेगी, समझने से याद रहेगी, और वो कभी आप भूल ही नहीं सकते हो। और मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि मुझे कन्वर्जन करना है 25 पीपीएम को, कितना डिग्री फ्रेंच होगा, 25 पीपीएम का डिग्री फ्रेंच कन्वर्जन कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा, अब आप टेबल देखोगे तो आपको फिर ये होगा कि 25 पीपीएम है, तो उसमें फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अरे एक मिनट, फ्रेंच में कौन सा कॉलम था, क्लार्क का कौन सा कॉलम था, और अगर जो कॉलम आगे पीछे हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो गया, मार्क्स आपके चले जाएंगे। क्यों भाई रट्टा क्यों मारना है, परेशानी क्यों लेनी है दिमाग में, और कुछ चीजें नहीं करने की है तो ये रट्टा मार के उतना मेमोरी आपका डिस्क का जो है ब्रेन का वो खराब कर रहे हो रट्टा मार के, समझ के करो। इट इज लाइक यू नो क्या बोलते हैं, जिप फाइल और एक होता है ओपन फाइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जिप फाइल एंड रेगुलर फाइल?
जिप फाइल में आपकी मेमोरी कम यूज होती है, कंप्रेस कर देता है, लेकिन फिर भी अंदर सारा कंटेंट होता है। बस तो ये वही बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो 2.5 इज करेक्ट आंसर, बट उसको लाना कैसे है? बहुत सिंपल सा है। पीपीएम दिया है आपको, तो इसको यहां पर लिखो पीपीएम, राइट, और फ्रेंच यहां पर लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बस, कि अगर 10⁵ पार्ट होता है, फ्रेंच होता है, तो वो एक जस्ट मिनट, आपको पीपीएम को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर एक आपका जो 10⁶ पार्ट, 5 पार्ट में आपका जो होता है वो फ्रेंच का कन्वर्जन है, याद रखो, ये ध्यान रखो, ये फ्रेंच का कन्वर्जन है। इसको दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं, इट इज 1/10 ऑफ योर रेगुलर पीपीएम। तो सिंपल सी बात है, पीपीएम किस में है आपका? पीपीएम किस में है? ये 10⁶ में है, राइट। तो इसको क्या करो आप, सिंपल सी बात, कि अगर 10⁶ में वो 25 पार्ट है, तो फ्रेंच कितना होता है? 10⁵, उसमें कितना पार्ट होगा? बस कैलकुलेट करो, 10⁵, 25 डिवाइड बाय 10⁶, 2.5 डिग्री फ्रेंच। याद रखो, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क कट जाएंगे एग्जाम में। अगर सेम चीज मुझे कन्वर्जन करना है, कितना डिग्री क्लार्क, तो सेम वे कि 10⁻, बिकॉज आपको दिया है पीपीएम, तो आपका शुरुआत हमेशा 10⁶ से होगा। 10⁶ में अगर 25 पार्ट है, तो 70,000 में कितना? बस खत्म। कोई बता सकता है मुझे कैलकुलेट करके? कितना होगा? 70,000 into 25, it is 1.75. I'm taking it for granted. 1.75. Right? It is 1.75, but क्या? डिग्री क्लार्क। ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो, rather than cramming all the tables and all the formulas and all, पागल होने के बजाय एकदम इजी वे में। उल्टा भी कर सकता हूं मैं, अगर 25 फ्रेंच है, उसको मुझे क्लार्क में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। चलो ऐसा ही स्टेप रखते हैं। अब पहले क्या दिया है? फ्रेंच। तो आपका स्टार्ट शुरू कैसे होगा? 10⁵ में 25 है पार्ट, तो क्लार्क में कितना होगा? 70,000 पार्ट है, उसमें कितना होगा? तो चलो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। हमेशा मेरे क्लास में आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठोगे हमेशा, ठीक है। कितना आएगा? 17.5। क्या? डिग्री क्लार्क। तो ऐसे कन्वर्जन आपको बार बार करने को आएंगे और आना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। बस इतना सिंपल सा है। क्यों इतना बड़ा टेबल याद रखेंगे? क्यों इतना दिमाग खराब करेंगे यार? इतना इजी जब मेरे पास अवेलेबल है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कि जिसका यूनिट दिया हुआ है उससे शुरू करो। फ्रेंच दिया है तो 10⁵ से शुरू करो। उल्टा भी कर सकते हैं, क्लार्क का फ्रेंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लार्क का फ्रेंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर 25 डिग्री क्लार्क है, उसका मुझे फ्रेंच करना है, तो क्या होगा? क्लार्क दिया है तो 70,000 में अगर 25 है, तो 10⁵ में कितना होगा? कितना होगा बताओ जरा मुझे। 35.7। 35.7 क्या? फ्रेंच। पूछा क्या है? फ्रेंच। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, जिसको बच्चे पागल होके रटते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है रटने की। लग रहा है आपको जरूरत है कोई?
आप बताओ मुझे, कोई जरूरत है रटने की इसमें? इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं। बुक जब आप देखोगे तो बुक में तो ये सारी चीजें ऐसे दी हुई है, राइट? बट वो तो उनका ड्यूटी बनता है सारा देने का। उसमें भी कैलकुलेशन भी बताया हुआ है, लेकिन इससे इजी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा आपको कभी भी। इट्स वेरी सिंपल। फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब हो जाता है मेरा, तो मैं क्यों हाई फाई कैलकुलेशन या हाई फाई रेक्टिफिकेशन पे जाऊंगा मैं, बताओ। सो आई होप के आज के लेक्चर में मजा आया होगा आपको, सब लोगों को। यस यस क्लियर हो गया जितना कंसेप्ट हुआ हमारा? आई होप के जिन लोगों का पीपीएम का कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो भी क्लियर हो गया होगा। सबका कंसेप्ट एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया कि नहीं?